ناظرین، موسم پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں پیر کی شام سے گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کے ستائے شہریوں کو خوشخبری سنا دی ہے۔ بارش کا سلسلہ 1 سے 2 روز تک وقفے سے جاری رہے گا۔ شہریوں کو بارش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ دور شہوار کی رپورٹ میں جانیے۔ آگ برساتا سورج، لو کے تھپیڑے، گرم ہوائیں، کراچی والوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ بارش برسانے والا سسٹم شہر میں برسنے کے لیے بے تاب۔ پیر سے بادل گرجنے کے ساتھ ساتھ خوب برسیں گے بھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بادل برسنے کو تیار۔ بحریہ عرب سے آنے والی نمی اس سسٹم کو تقویت دے رہی ہے۔ شہر میں ہونے والی بارش 1 سے 2 دن وقفے سے جاری رہ سکیں گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی پر شہریوں نے بھی امید باندھ لی۔ کہتے ہیں کہ گرمی سے تو برا حال ہو گیا ہے، اگر بارش ہو جائے تو بڑی راحت ملے گی۔ گرمی میں کمی تو ہونی چاہیے، بارش آئے گی تو کمی تو لازمی ہونی چاہیے۔ اور گرمی تو آپ دیکھیں کیسی ہے، صبح اٹھو تو بالکل جسم وغیرہ درد اور ایک فلو سا چل رہا ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے بارش ہو جائے تو بہترین طرف ہے۔ شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے بھی اپیل کی کہ بارش کی پیش نظر انتظامات مکمل کر لیے جائیں تاکہ بارش کے دوران سڑکوں پر پانی جمع نہ ہو۔ ہیٹ اسٹروک بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی دعا ہے ہماری بارش ہو اور یہ کراچی کا موسم اچھا ہو جائے۔ جس طرح پہلے بہت گرمی ہے، ہم گرمی سے چھٹکارا حاصل کریں، اور انشاءاللہ دعا ہے آگے بھی موسم پورا سال اچھا ہی رہے ادھر۔ ماہرین کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں پر اثر انداز ہوگا، جبکہ شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ دور شہوار، سٹی 21 نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ زکوٰۃ و عشر سندھ میں 85 کروڑ روپے کی سنگین بے ضابطگیاں سامنے آ گئی۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ محکمہ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ رپورٹ کے مطابق محکمے کو مستحقین کے لیے 4 ارب 63 کروڑ روپے سے زائد رقم ملی، جس میں سے 82% تقسیم ہی نہیں کی گئی۔ جو 85 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے ان میں بھی بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی۔ 13 کروڑ روپے گزارا الاؤنس کے لیے مختص ہوئے، مگر 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہوا۔ عید پیکیج، قدرتی آفات اور علاج کے لیے مختص کروڑوں روپے بھی خرچ نہیں کیے جا سکے۔ طلبہ کے وظائف کے لیے بھی 9 کروڑ 85 لاکھ جاری ہوئے، مگر جامعات کے طلبہ کا ریکارڈ تک نہ ملا۔ 29 اضلاع میں 22 کروڑ روپے جاری ہوئے، لیکن صرف 7 کروڑ 97 لاکھ تقسیم کیے گئے۔ اور محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن سندھ میں چیئرمین سید ذوالفقار علی شاہ اور ڈائریکٹر امتیاز علی ابڑو کے مابین ٹھن گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر سٹی 21 کی نشاندہی۔ چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن نے محمد امین بھٹی کو عہدے سے سرنڈر کر دیا۔ تفصیلات آزاد نوہڑیوں کی اس رپورٹ میں جانیے۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن میں من مانے فیصلے، قوانین کو پسے پشت ڈالنے کی خطرناک روش۔ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب سٹی 21 نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے حکم پر عمل درآمد نہ ہونے کی نشاندہی کی۔ اس پر چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن سید ذوالفقار علی شاہ اور امتیاز علی ابڑو کے مابین ٹھن گئی۔ وجہ یہ سامنے آئی کہ چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن کے حکم پر ہٹائے جانے والے افسر محمد امین بھٹی پر ڈائریکٹر انکوائری اینٹی کرپشن امتیاز علی ابڑو مہربان رہے، اور 17 گریڈ کے افسر محمد امین بھٹی کو سرنڈر نہیں کیا گیا۔ سٹی 21 نے نشاندہی کی تو محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگزیکٹو محمد امین بھٹی کی خدمات واپس کر دی گئیں۔ محمد امین بھٹی کی خدمات محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کے سپرد کی گئی تھی۔ محمد امین بھٹی کو چیئرمین اینٹی کرپشن نے 23 اپریل 2025 کو عہدے سے فارغ کیا تھا۔ آزاد نوڑیو، سٹی 21۔ دوسری جانب سندھ کی بیوروکریسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا۔ محکمہ محنت و افرادی قوت کے ڈاکٹر انیس قادر منگی کو شہید بے نظیر بھٹو ہاؤسنگ سیل میں ڈیپوٹیشن پر تعینات کر دیا۔ او پی ایس کی بنیاد پر 19 گریڈ کی پوسٹ پر ڈائریکٹر بھی بنا دیا۔ ان پر 85 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کا ریفرنس زیر سماعت ہے۔ آزاد نوڑیوں کی رپورٹ میں جانیے۔ سندھ کی بیوروکریسی نے سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود ڈاکٹر انیس قادر منگی کو شہید بے نظیر بھٹو ہاؤسنگ سیل میں نہ صرف ڈیپوٹیشن پر تعینات کیا گیا بلکہ او پی ایس کی بنیاد پر گریڈ 19 کی پوسٹ پر ڈائریکٹر بھی بنا دیا، حالانکہ وہ گریڈ 18 کے افسر ہیں۔ فیلڈ پوزیشن کے حامل ڈاکٹر انیس قادر منگی کو اہم ایڈمنسٹریٹو عہدے پر تعینات کر دیا گیا، ایک ایسی تعیناتی جسے عدالت عظمیٰ نے ماضی میں غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر انیس قادر
कादिर मंगी पर सेसी में 85 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इल्जाम है और उनके खिलाफ नेब रेफरेंस 2017 में दायर किया गया था, जो अभी भी एहतसाब अदालत कराची में जेर समात है। जराये के मुताबिक माजी में भी डॉक्टर अनीस कादिर मंगी को डायरेक्टर इंसानी हुकूक जैसे हसास ओहदे पर तैनात किया गया था, ताहम अदालत के हुक्म पर उनका तबादला करके खिदमात वापस सेसी को सौंप दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर अदालती अहकामात को नजरअंदाज करके आला ओहदों पर फायज कर दिया गया। डॉक्टर अनीस कादिर मंगी नेबजदा अफसर हैं, उन्हें दोबारा आला पोस्ट पर लाना न सिर्फ इदारों की साख पर सवालिया निशान है बल्कि अदालत के फैसलों की तौहीन भी है। कानूनदानों का मुतालबा है कि इस तैनाती का नोटिस लिया जाए और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। कराची को जन्म देने वाले आज अपनी शनाख्त के मुंतज़िर केपीटी ने सदियों से आबाद माहीगीर बस्तियों को कब्जा करार देकर नोटिस जारी कर दिए। कक्का विलेज, सालेहबाद और यूनुसाबाद के मकीन कहते हैं कि हमारे अजदाद इसी ज़मीन में मदफून हैं, इलाका खाली नहीं करेंगे। आज इस जमाली की रिपोर्ट में देखिए। एशिया के माथे का झूमर कराची और इस झूमर के नगीने शहर के पुराने माहीगीर बस्तियां, लेकिन यहाँ के मकीन आज अपने ही घर में पराये बन गए। विलेज के बारे में मकामी अफराद का दावा है कि ये माहीगीर बस्ती 250 बरसों से आबाद है, जबकि सालेहाबाद को 3 सदियां बीत चुकी और 1887 में अंग्रेज दौर में तामीर होने वाले कराची पोर्ट ट्रस्ट ने इन माहीगीर बस्तियों को कब्जा करार दे दिया। केपीटी ने ऐसी 18 कदीमी आबादियों को नोटिस दे रखे हैं कि कब्जे खत्म किए जाएं, वरना ऑपरेशन किया जाएगा। गुज़िश्ता माह रमजान में भी केपीटी ने यूनुसाबाद में ऑपरेशन करके कई पक्के मकानात मिस्मार किए। यूनुसाबाद के मकीनों का कहना है कि उनके पास सिंध हुकूमत की लीज मौजूद है। 92-93 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमें लीज दी है, जो कि ऑन द रिकॉर्ड है। ये खुद जब ये आबाद हो रहा था, जब लीज मिली हुई थी सब कुछ, तब वहाँ केपीटी उस टाइम कहाँ थी? उस टाइम केपीटी को ख्याल नहीं आया कि ये घर बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये उस टाइम पे ये क्लेम करती वो। इनका हक भी नहीं बनता है यहाँ पे। ये सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत है और सिंध गवर्नमेंट ने लीज दी हुई है हमारे 52 एकड़ को। ये सारी ये बिल्कुल ये नाजायज़ ये कर रही है। कदीमी माहीगीर बस्तियों के बारे में पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली का कहना है कि मकामी अफराद के घरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। केपीटी 1947 से पहले तो नहीं था ना, तो ये गोट 1947 से पहले के हैं, ये लोग 1947 से पहले के हैं। तो ये बात बात जो है ना, ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इस दफ़ा ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपको अपने लोगों के साथ खड़े हैं। कराची में या पूरे सिंध में जो कदीमी गोट हैं, जिनकी अपनी तारीख है, जिनकी हिस्ट्री है, उनको हम किसी सूरत में डेमोलिश होने या रिप्लेस या उनको डिस्पर्स होने नहीं देंगे। समंदरी जजायर, मंडोड़ा, बाबा, बेट और शमसपीर के मकीनों को पीने का पानी मुयसर नहीं और ऊपर से बस्तियां खाली होने का खौफ है। मकामी अफराद का कहना है कि वो अखबारात में शाया शुदा नोटिस को नहीं मानते और न वो अपने इलाके खाली करेंगे। कैमरामैन कमर आबिदी के साथ आजिज जमाली, कराची। सिंध में धरना खत्म हुआ, मगर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स का इम्तिहान बाकी है। एक्सपोर्ट कंटेनर्स की आमदोरफ्त बढ़ने से शेरशाह, माड़ीपुर, गुलबाई और टावर पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सीनियर रहनुमा इमदाद नकवी कहते हैं कि क्लियरेंस अमल तेज़ किया जाए और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल ना होने वाले ट्रॉलर्स को रोका जाए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। क्लियरिंग एजेंट्स की गफलत, कराची कंटेनर्स का जंगल बन गया। सिंध पंजाब की कौमी शाहराहों पर धरना ख़त्म हुआ तो बंदरगाहों की जानिब एक्सपोर्ट कंटेनर्स का रेला उमड़ आया। कराची पोर्ट, माड़ीपुर, शहरशाह, गुलबाई और टावर पर माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। 2 हफ्ते की रुकावट के बाइस हज़ारों कंटेनर्स बंदरगाहों के अंदर और बाहर जमा हो गए थे। अब जब रास्ते खुले तो क्लियरेंस में ताख़ीर ने सूरत हाल मज़ीद बिगाड़ दी। कई घंटों की ताख़ीर, ट्रैफिक जाम और शदीद गर्मी में ड्राइवर्स और क्लीनर्स परेशान हैं। सीनियर रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इमदाद नकवी कहते हैं कि पोर्ट हुकाम क्लियरेंस का अमल तेज़ करें। जिन क्लियरिंग एजेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं, वो अपने ट्रॉलर्स आर्जी तौर पर ट्रक अड्डों पर खड़े करें। ये गाड़ियाँ आ गई और ये सब एक्सपोर्ट के कंटेनर लेकर आ रही थी। अब इतनी बड़ी तादाद में जब ये पोर्ट पर पहुंची हैं तो हमारी पोर्ट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम फ़ाल नहीं है कि जो इतनी बड़ी गाड़ियों को फौरी तौर पर क्लियर कर सके। शदीद गर्मी में ट्रैफिक जाम के बाइस माल बरदार गाड़ियों के मालकान, ड्राइवर्स और क्लीनर्स अजियत में मुब्तला हैं, जबकि बंदरगाह पर क्लियरेंस का अमल
सुस्त और एक बहरान को जन्म दे सकता है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वकला भी मुल्क की सालमियत के दिफा में पेश हैं। भारत की जारहाना पॉलिसियों के खिलाफ सिटी कोर्ट कराची से रैली निकाली गई। वकला ने जोशो जज्बे से शिरकत की और कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। तफसीलात मोहम्मद जवाद आसिफ की रिपोर्ट में जानिए। कानून के रखवाले, वतन के वफादार भी। कराची बार का भारतीय जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तकबीर। नारे रिसालत। कराची बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सिटी कोर्ट में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में मुल्की सालमियत और कौमी वकार का दिफा था। बैनर्स उठाए, वकला ने हुब्बुल वतनी के नारे लगाए और विलवला अंगेज़ तकारीर से शुरका का लहू गरमा दिया। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाच ने कहा कि भारत इल्ज़ाम तराशियों से बाज रहे। वकला किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने को तैयार हैं। पाकिस्तान आर्मी बहुत मजबूत है। इस टाइम पे हम अपना दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत मजबूत है, वो अपना दिफा करना जानते हैं। वो अपने मुल्क की सालमियत पे किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी किस्म का भी अटैक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनरल सेक्रेटरी गुलाम रहमान कुरैशी बोले कि मोदी सरकार याद रखे, कोई भी मुआहदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। हम कानूनी और आईनी सतह पर लड़ने को तैयार हैं। आपको ये लगता है कि आप इस तरीके से थ्रेट करके, अपने ड्रोन्स भेज के हमें इस तरह से डराने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये पूरी दुनिया आपको देख रही है, इस वक्त सबको नज़र आ रहा है कि हथकंडा कौन कर रहा है, कौन किस तरीके से गलत चीज़ों को डील कर रहा है। रैली ख़त्म नबूवत चौक सिटी कोर्ट से शुरू होकर एम जनाह रोड तक निकाली गई, जिसमें वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राना जहांज़ेब के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। मुत्तहिदा पाकिस्तान की जानिब से लियाकताबाद में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुजाहरा। रुकन कौमी असम्बली अहमद सलीम सदीकी कहते हैं कि किसी किस्म की जारहियत पर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आहनी हाथों से दुश्मन को दंदान शकन जवाब देगा। MQM पाकिस्तान लियाकताबाद टाउन के ज़ेर एहतमाम पाक फ़ौज की हिमायत और भारतीय जारहियत के खिलाफ लियाकताबाद 10 नंबर पर मुजाहरा किया गया, जिसमें अरकान सूबाई और कौमी असम्बली MQM ज़िम्मेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शराका ने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार और नाअहल भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रुकन कौमी असम्बली अहमद सलीम सदीकी ने कहा कि पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान की सालमियत पर उठने वाली मैली आंख किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, नई कच्ची आबादियों में सेहत की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। मुशीर कच्ची आबादी नजमी आलम कहते हैं, हमारे पास 100 कच्ची आबादियाँ रजिस्टर्ड हैं। आइंदा जिस कच्ची आबादी को रजिस्टर्ड करेंगे, एक प्लॉट सेहत की सहूलियात के लिए मुख्तस किया जाएगा। जल्द कच्ची आबादियों में बेसिक हेल्थ यूनिट कायम किए जाएंगे। बहुत सी NGO से भी राब्ते में हैं। इस वक्त हमारे पास 100 से ऊपर रजिस्टर्ड कच्ची आबादियाँ हैं। उस पैमाने के मुताबिक कि 2011 की आबादी होगी, उसमें हमने और तकरीबन 150-200, अब क्योंकि गोट आबाद ख़त्म हुआ है तो ये तादाद बढ़ गई है। वो गोट भी हम क्योंकि अर्बन एरिया में आ गए हैं तो हमारी जुरिस्डिक्शन में आ गए, लेकिन हमने अब ये तय किया है कि हम जो भी आबादी लीज़ करेंगे उसमें एक प्लॉट क्रिएट करेंगे फॉर बेसिक हेल्थ यूनिट के लिए, और वो हमारी बातचीत चल रही है कई NGOs से जो रिपोर्टेबल हैं कि हम आपको ये ज़मीन देते हैं, आप यहाँ फ्री डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल बनाएं। तो वो अल्लाह का शुक्र सभी इंटरेस्टेड हैं। लॉयंस क्लब है, रोटरी है, JDC है, सैलानी है, ये सब के सब हमसे कह रहे हैं कि हमें ज़मीन दें, हम बनाएंगे। खून न मिलने से मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहिक हुए तो मसीहा खुद मैदान में आ गए। सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप, जहां डॉक्टरों समेत मेडिकल के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने खून के एहतियात दिए। इब्राहिम ट्रेन की रिपोर्ट में जानिए।
शहर में शदीद गर्मी की लहर, जिला अस्पताल के गैनी समेत मुख्तलिफ वार्डों में जेर इलाज मरीजों के लिए खून की कमी का सामना। गैनी वार्ड नंबर 9B की इंचार्ज डॉक्टर निगहत शाह ने जिनात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। डॉक्टर निगहत शाह और उनके साहिबजादे समेत दीगर तुलबा व तालिबात ने भी बड़ी तादाद में खून के अतियात दिए। बिल्कुल देना चाहिए, थैलीसीमिया के लिए हमें बिल्कुल ब्लड डोनेट करना चाहिए। जब मैं दे सकती हूँ तो आप लोग भी दे सकते हैं। एक दूसरे इंसान को एक खून की ज़रूरत होगी तो एक हमारी वजह से उसकी जान बचेगी, एक तरीके से सदका जारिया है। और मैं दूसरे लोगों को भी यही पैगाम देता हूँ कि दूसरे लोग भी ब्लड से ज़्यादा डोनेट करें ताकि दूसरे लोगों की आप जान बचा सकें। मुझे जो है बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लड दिया है और एक्चुअली में मैं पहले घबरा रही थी, लेकिन जब सबने सपोर्ट किया तो मुझे था कि नहीं कुछ भी नहीं होगा और माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और बल्कि अच्छा लग रहा है। इस मौका पर डॉक्टर निगहत शाह और दीगर प्रोफेसर ने खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा किया और मौजूदा सूरत हाल में अवाम से भी खून अतिया करने की अपील की। खून देने से नुकसान नहीं है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे कोलीग्स भी हैं, ये हमारा वर्कर है वहाँ पर, सब लोगों ने, सारे बच्चों ने, सब लोगों ने ब्लड दिया है और इससे 3 जिंदगी बचती है। एक बोतल खून से कि वाइट ब्लड भी इसका बनता है, FFPs प्लेटलेट बनते हैं और पैक सेल वॉल्यूम। पेशेंट के लिए सेक्रीफाइस करने का ये हमारा जो ओथ होता है जिसके तहत हम मेडिकल ग्रेजुएशन करते हैं कि हमें अपने आप को पेशेंट के लिए वक्फ करना है। इस मौका पर खून अतिया करने वाले तुलबा और फैकल्टी मेंबरान ने कहा कि खून अतिया करके कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, क्योंकि ये ब्लड जो है वो इम्पोर्टेंट है उन पेशेंट्स के लिए जहाँ पे ब्लड की शदीद ज़रूरत होती है। यहाँ पे सिर्फ प्रोफेसर्स ने नहीं दिया मगर प्रोफेसर्स के बेटों ने भी दिया। जैसे हमारी प्रोफेसर है निगहत शाह, उनके बेटे ने दिया। डॉक्टर इरम हैं, डॉक्टर इरम शेख एसिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने दिया। प्रोफेसर डॉक्टर हरीमा ने दिया, डॉक्टर ज़िशा ने दिया। मतलब सीनियर फैकल्टी भी यहाँ पे आके उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया। तो ये पॉजिटिव है। तो वी नीड्स ह्यूमैनिटी, नो वॉर, पीस इज इम्पोर्टेंट। एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का JSMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन, जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल और दीगर ने भी दौरा किया और हर 3 माह के बाद कैंप लगाने का इरादा जाहिर किया। जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक रोजा ब्लड कैंप लगाया गया, जहाँ पर बड़ी तादाद में तुलबा व तालिबात, फैकल्टी और इंतजामिया ने भी खून के अतियात दिए, जिनका कहना था कि मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए तमाम अफराद को खून के अतियात देना चाहिए। कैमरामैन सैयद शाहजेब के हमरा इब्राहिम रेंज सिटी 21। सुहेल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा कैरियर काउंसलिंग पर भी खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। चांसलर डॉक्टर तारिक सुहेल के मुताबिक तकरीब में 159 तलबा को डिग्रियाँ तफवीज़ की गई। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में जानिए। डिग्रियों का ख्वाब पूरा हुआ, अब बारी है मुल्क की खिदमत की। सुहेल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार शाह ने शिरकत की और 159 फारिग तहसील तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। सैयद सरदार शाह बोले कि तालीम के हकीकी फवायद तभी हासिल होंगे जब बच्चों को इनकी सलाहियतों और दिलचस्पियों के मुताबिक मौके दिए जाएंगे। डॉक्टर्स या इंजीनियर के अलावा दीगर शोबाजात में भी करियर बनाने की जरूरत है। वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक सुहेल ने कहा कि हमारे ग्रेजुएट्स को नुमाया सरकारी व निजी इदारों में मुलाजमत मिल चुकी हैं। हम पहले दिन से ही तलबा को इंटर्नशिप के मौके फराहम करते हैं ताकि वो अमली दुनिया के लिए तैयार हों। माशाल्लाह से 100% बच्चों को जॉब्स ऑलरेडी मिल चुकी हैं। जिनको जॉब्स नहीं है वो MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में हैं। बहुत सारे बच्चों को जॉब्स मिल रही हैं सऊदी अरेबिया में, कुवैत में एंड दूसरे हॉस्पिटल्स, इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स जो हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सभी जाफरी का कहना था कि ये खुशी का लम्हा है कि हमारे तमाम तलबा की कामयाबी से फारिग तहसील हुए। उम्मीद है कि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। फोकस बनाएं और कोशिश करें कि मतलब हुनर भी सीखें साथ साथ। इससे कि आजकल तालीम के साथ साथ हुनर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके हाथ में अगर कोई हुनर होगा तो आप अपना प्रोग्राम खुद भी शुरू कर सकते हैं। तलबा और उनके वालिदैन ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। सर अपनी डिग्री के साथ साथ कुछ इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि आपको डिग्री के फ़ौरन बाद जॉब्स वगैरह मिल सके। बहुत अच्छा, और तो नर्वस भी हूँ और बहुत हैप्पी भी हूँ। ये बच्चे जो हैं आगे जाकर हमारे मुल्क के लिए जो है हमारा बेहतर फ्यूचर होगा इंशाल्लाह। मेरे बच्ची ने आज जो है डिग्री ली है और सारे बच्चों ने डिग्रियाँ ली हैं। अल्लाह इनको कामयाब करे। कॉन्वोकेशन में चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर SM तारिक रफ़ी ने भी शिरकत की, जबकि फैकल्टी मेंबरान, असातिज़ा, वालिदैन और फारिग तहसील तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी।